everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great and you had a great week. So from the title of the video, you must be knowing that in this video what all things we are going to discuss. First of all, like this video because you all watch it till the end. I know most of you watch till the end, but forget to like the video. So please do like the video and subscribe the channel if you are new to this channel. So do subscribe. Don't forget to hit the like button. I'm repeating it again and I'm waiting for you all to like this video and then we can get started with this video. And by the way, these are not my glasses. Like these are my glasses, but इसमें power नहीं है. Moving forward, so I hope अभी तक सबने like कर दिया होगा. Now, so today's topic is what all fields we can choose or what all jobs are perfect if you all don't like or enjoy doing coding and you don't want to be a software developer. You got to know about this while you were pursuing engineering in software. Basically, if you were looking for being in software field, like you wanted to be a software developer, as we get a good amount of money in that, में बहुत पैसा तो है आजकल, but still उसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे job roles हैं जिसमें हमें बहुत अच्छी income मिलती है and it's good for a career also. And in this video, I'm going to help you with all the job roles which you can opt for if you're doing engineering and you would like to do something with good amount of package and not related to coding. Okay, so let's get started. Also, if any one of you is wondering why I'm wearing a formal shirt, looking very formal, that is because मैं office से जैसे आ रही हूँ and office से आने के बाद मैं ये video बना रही हूँ because now I want कि मैं थोड़ी सी consistent हो जाऊँ, at least one video a week मैं upload कर सकूँ, informative video because this is a very crucial time for everyone, whether you are pursuing engineering or you want to pursue engineering. But सबसे पहला question आपके दिमाग में होना चाहिए that engineering करके भी आप क्या करना चाहते हो, what do you want to be in your life? So आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, इसके लिए आपको अभी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट? सो अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो आप इंजीनियरिंग कौन सी फील्ड में करना चाहते हो? लाइक इफ यू वांट टू बी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन फ्यूचर, इफ यू वांट टू बी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर, दिस इज अ रोल, लाइक SDE बोलते हैं शॉर्टकट में इसको. So whatever is your aspiration, whatever you want to be in your future, like whatever career you want to pursue, this thing starts from grade 10th. Like 10th में आपके 10th के मार्क्स के बेसिस पे आपको स्ट्रीम मिलता है, स्पेशली फॉर साइंस स्टूडेंट्स. अगर आपको साइंस लेनी है, यू हैव टू स्कोर गुड मार्क्स सो दैट यू कैन परस्यू साइंस इन 11th एंड 12th, राइट? कुछ लोग डिप्लोमा भी करते हैं थ्रू विच वो लेटरल एंट्री ले सकते हैं इन इंजीनियरिंग डायरेक्ट सेकेंड ईयर में. इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया मेरी लास्ट वीडियो में. सो अगर आपने नहीं देखा है कि डिप्लोमा कैसे करते हैं, 10th के बाद 3 ईयर कोर्स करते हैं, उसके बाद आपको डायरेक्ट इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में डायरेक्ट लेटरल एंट्री मिल जाती है, राइट? तो ये मैंने आपको पूरा अच्छे से डिटेल में वीडियो बनाई है. सबको जानना है कैसे डिप्लोमा करते हैं ताकि आपकी डायरेक्ट सेकेंड ईयर में ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज एंट्री हो जाए. तो वो आप देख सकते हो मेरे प्रीवियस वीडियो के PCM में जो भी ग्रेड्स आते हैं उसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि आप अपना JEE मेंस के बाद एडवांस क्लियर करने के बाद आप IIT NITs ट्रिपल ITs में जा सकते हो कि नहीं जा सकते, राइट? क्योंकि आप एडवांस अगर क्लियर करते हो तब आपको एडमिशन तभी मिलता है जब आपके एटलीस्ट 75+ % आए हों आपके 12th के एग्जाम में PCM में, ठीक है? वो चीज़ हो गई. वो क्लियर करने के बाद जब आपका JEE होता है मेंस, आपकी जो भी रैंक आती है उसके बेसिस पे आपको इंडिया के टॉप 1, टॉप 2 एंड टॉप मोस्ट बेस्ट कॉलेजेस मिलते हैं, राइट? बेस्ड ऑन योर ऑल इंडिया रैंक. वो हो गया एंड देन नाउ यू आर इन अ बेस्ट कॉलेज. बेस्ट आप IIT में हो, मे बी आप NIT में हो, ट्रिपल IT में हो, या तो फिर आप बेस्ट गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेजेस में हो, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में. एंड नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि आपने जो सोचा था आपको इंजीनियर बनना है, आपने फिर सोचा होगा ना इंजीनियर बनना है तो कौन सी फील्ड में बनना है आपको. इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है आपको, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है आपको, या आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर बनना है, या आपको सिविल इंजीनियर बनना है, मैकेनिकल इंजीनियर बनना है. ये आपने सोचा होगा ना. क्यों सोचा आपने? क्योंकि आपने उससे पहले ये चीज़ सोची होगी आपने कि आपको फ्यूचर में क्या जॉब करनी है. अगर आपको जॉब करनी है तो आपने सोचा होगा ना कि आप कौन सा रोल चाहिए. आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए जो कोर्स आता है दैट इज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आप वो ऑप्ट करोगे. आप फ्यूचर में DRDO में रिसर्चर बनना चाहते हो, DRDO में आप या किसी भी और इलेक्ट्रिकल कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लोगे कोर्स. सो बेसिकली मेरा कहने का यही मतलब है कि आपको पहले आपको क्या फ्यूचर में कौन सा जॉब रोल चाहिए,
उसके अकॉर्डिंगली आपको कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में आते हो तब. सो ऑल दोज हु एस्पायर टू बी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, इफ यू डोंट गेट कंप्यूटर साइंस ब्रांच बट यू गॉट अ वेरी गुड कॉलेज, देन प्लीज परस्यू अ गुड कॉलेज. बिकॉज आप किसी और ब्रांच में भी होगे, एक गुड कॉलेज में ही होगे, तो आप कम से कम अच्छी कंपनीज का पार्ट बन सकते हो, अच्छी कंपनी के प्लेसमेंट में आप बैठ सकते हो. हु आर गोइंग टू सिट फॉर जेईई एडवांस, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड डोंट वरी. जो होता है अच्छे के लिए होता है. जिसका हुआ वो उनके लक में था, जिसका नहीं हुआ वो भी उनके लक में था. बट नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी आपके लक में आया यू ग्रैब इट एंड गिव योर बेस्ट. ठीक है. प्लेसमेंट्स के इश्यूज चल रहे हैं अभी थोड़े से, कंपनीज इतनी नहीं जा रही हैं हर कॉलेज में, इसलिए वो सिर्फ बेस्ट स्टूडेंट्स को ही कैंपस प्लेसमेंट सिर्फ बेस्ट स्टूडेंट्स का होता है. सो प्लीज फोकस ऑन दैट. सो दिस वीडियो's टाइटल इज इफ यू डोंट लाइक कोडिंग, सो व्हाट अदर जॉब्स और व्हाट अदर गुड job roles are there for you with good packages. So welcome to the club if you also don't like coding, or maybe you thought that you will like it, but eventually after started learning it, starting doing it, you realize that no, it's not my cup of tea. So don't get disheartened because there are many job roles which are very interesting and you will like them, but it's little more hardworking work. So first thing is core engineering jobs. So if you are in core branch, like if you are in ECE, mechanical, civil or any other core branch, then you have दोनों हाथ घी में डूबे हुए. It's like कि आप ECE में हो, suppose example दे रही हूँ, अगर आप electronics and communication में हो, you can sit for SE role jobs, okay, and you can also sit for core branch की jobs also. तो आप हुआ ना दोनों हाथ घी में, but आप जितनी ज़्यादा चीज़ में आप एलिजिबल होगे, आपको उतनी ज़्यादा हार्डवर्क मेहनत करनी होगी. तो प्लीज़ यू हैव टू बैलेंस आउट योर लाइफ अ लॉट इफ़ यू वांट टू बी सॉफ्टवेयर डेवलपर और इफ़ यू वांट टू बी इन सॉफ्टवेयर साइड. आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप कोर ब्रांच में के स्टूडेंट हो एंड यू वांट टू शिफ्ट टू कंप्यूटर साइंस ब्रांच, और इफ़ यू वांट टू शिफ्ट टू computer science field so that you can get the role of your choice, which is software developer engineer. And if you don't like coding, then don't worry, I will cover everything in this video. So first thing is you can opt for core engineering jobs which are basically non IT field. अगर आप core branch में हो, प्लीज़ अपने ब्रांच का पढ़ाई कर लो पूरे टाइम. Python, Java, C++, इस सब में दिमाग अगर आपका नहीं लग रहा है, then प्लीज़ अपना पूरा फोकस करो अपनी पढ़ाई पे जो आपकी कॉलेज में हो रही है. बेसिक पढ़ाई कर लो, क्योंकि लोग इतना एक्सपेक्ट करती नहीं है कंपनीज की कोर के लिए हम स्टूडेंट्स लेने आए हैं, उनको इतना भी पता होगा. ठीक है. तो इसलिए आप कोर आपको जो क्लास में पढ़ा रहे हैं वो प्लीज़ अच्छे से पढ़ा करो. एग्जाम हो रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि कोर ब्रांच को एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है अलग से. जो उनकी पढ़ाई हो रही है बस वही पढ़ते रहो, दैट्स इट. जैसे आप कोर ब्रांच में आपको अलग से सॉफ्टवेयर साइंस के लिए भी लाइक कोडिंग लैंग्वेज आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल. तो इसीलिए अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो या आपको पता चला है धीरे धीरे कोडिंग करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, बिकॉज फर्स्ट ईयर सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का सिलेबस एक ही होता है. फर्स्ट ईयर सारे ब्रांचेस में एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, एक ही सारे सब्जेक्ट एक ही होते हैं फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज. सो नाउ ऑन योर स्क्रीन्स यू कैन सी कि कौन से कोर ब्रांच में आपको कितने का पैकेज मिल सकता है और क्या क्या जॉब रोल्स हो सकते हैं. मैकेनिकल इंजीनियर, ऑटोमेटिव, एरोस्पेस, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में आपकी एलपी होती है 6 to 12 एलपी होती है. ठीक है. ये एवरेज पैकेज मैं बता रही हूँ आपको. उसके बाद सिविल इंजीनियर का इंफ्रास्ट्रक्चर में जा सकते हो आप, अर्बन प्लानिंग, रियल एस्टेट, इन सब में आपकी 5 to 10 लाख एलपी होती है. इस पे आपको दिख रहा होगा कि कौन कौन से आप इंजीनियरिंग ब्रांच में हो और आप क्या क्या उस इंजीनियरिंग ब्रांच में रोल्स मिलते हैं और उनका एवरेज पैकेज क्या होता है. बेसिकली आपके पास कोर जॉब्स में आपके पास कंपनी आती है L&T, टाटा स्टील्स, रिलायंस, DRDO. सो कोर ब्रांच में भी अच्छी खासी प्लेसमेंट होती है. ठीक है. तो ये आप कोर ब्रांच के रोल्स के लिए आप प्रेप कर सकते हो. अपनी कोर मतलब जिस ब्रांच में आप वही प्रेप कर लो. एंड सेकेंड इज मैनेजमेंट एंड बिजनेस रोल्स. सो MBA कर लो आप, आपकी 3 ईयर डिग्री आप कर रहे हो तो आप फिर MBA कर लो. ठीक है. तो ऑन योर स्क्रीन्स आर द थिंग्स विच यू कैन डू आफ्टर कंप्लीटिंग योर MBA आप कर सकते हो अपनी किसी भी 3 ईयर कोर्स कंप्लीट करने के बाद, या इवन आफ्टर इंजीनियरिंग आप अगर MBA करते हो तो आप कंसल्टिंग फर्म में जा सकते हो. और कौन कौन सी कंसल्टिंग फर्म्स हैं, बहुत सारी कंसल्टिंग फर्म है. वन इज बिग 4, वन नहीं है. एक सबसे बड़ी बात है कंसल्टिंग फील्ड में जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं वो है बिग 4. अब बिग 4 क्या है वो आप पहले की वीडियोस में जाके आप देखो. बिजनेस एनालिस्ट के रोल कर सकते हो आप, प्रोडक्ट मैनेजर का रोल कर सकते हो. एंड आप देख रहे हो कि स्टार्टअप्स में भी प्रोडक्ट मैनेजर को कितना अच्छा पैकेज मिलता है. अगर आपको MBA करनी है तो MBA करने के लिए आपके पास कौन से गुड कॉलेजेस हैं, IIMs हैं, ऑब्वियसली ISB है,
FMS है, बहुत सारे हैं, बट ऑल ऑफ दीज आर थ्रू कैट एंड GMAT का एग्ज़ाम आप दे सकते हो, आपको एक अच्छा MBA कॉलेज मिल जाएगा। थर्ड इज डेटा साइंस एंड एनालिस्ट। आपको बहुत मिनिमम कोडिंग करनी होती है। बेसिकली आपको एक्सेल, एडवांस एक्सेल आना चाहिए, पावर BI आना चाहिए, SQL आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको आती होंगी देन इट्स वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि डेटा साइंस एंड डेटा एनालिस्ट का यही काम होता है। सो बेसिकली मैं भी अभी जिस कंपनी में हूँ उसमें मेरा जो रोल है वो एज अ कंसल्टेंट है, बट आई एम कंसल्टेंट इन सॉफ्टवेयर इन टेक फील्ड। तो मैं अपने आप को सिर्फ कंसल्टेंट नहीं, डेटा साइंटिस्ट भी बोलना चाहती हूँ, कि डेटा साइंटिस्ट या डेटा साइंटिस्ट भी बोलते हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा और मुझे एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। डेटा एनालिस्ट रोल ही है मेरा। कंसल्टिंग में भी जब हम टेक्निकल फील्ड में जाते हैं तो अलग अलग तरीके के टेक्निकल फील्ड होते हैं, और उसमें भी मैं अभी डेटा एनालिस्ट के रोल में। आप कोडिंग नहीं करो, पर दिमाग, आपका टाइम, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एक्टिव माइंड। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट। गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब एंड PSU, स्टेबल एंड हाई पे। ठीक है, तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रेप करो। आफ्टर कंप्लीटिंग योर इंजीनियरिंग यू कैन ऑप्ट फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, बट यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर इट, यू हैव टू वर्क हार्ड थोड़ा सा कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। PSUs हैं एंड मैनी अदर सच थिंग्स आर देयर, तो वो बहुत अच्छी होती हैं, वेरी स्टेबल एंड वेरी हाई पे। जॉब सिक्योरिटी बहुत होती है, बेसिकली ये मेन पर्क है, क्योंकि यू नो इट्स टाइम ऑफ रिसेशन, बहुत जगह चल रहा है। आपको पता है ये US और चाइना के तो बीच में इतनी लड़ाइयाँ चली रही हैं, ग्लोबल इम्पैक्ट बहुत सारी चीज़ों में पड़ेगा। तो इसीलिए आप ये फोकस करो कि आपको हर चीज़ जो भी करनी है आप अपनी पसंद से करो, पर जो भी आपको पसंद है उसको बहुत ही अच्छे से मन से करना। ओके, नॉन टेक जॉब्स भी आप परस्यू कर सकते हो इंजीनियरिंग करने के बाद, दैट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, लाइक फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कर सकते हो, जैसे आप फाइनेंशियल एनालिस्ट कर सकते हो, रिस्क मैनेजर बन सकते हो। उसके लिए आप थोड़े अलग से कोर्सेज करो। ठीक है, अब ये नहीं कि आपको इंजीनियरिंग आप कर रहे हो तो आपको उसमें जैसा आप चाहते हो वैसा ही मिल जाएगी आपको जॉब। अगर आप कोडिंग नहीं कर रहे हो तो आपको कुछ और स्किल्स करनी पड़ेंगी, लर्न करनी पड़ेंगी, जिससे कि आपका रिज्यूमे और अच्छा हो सके एंड आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सके। ऑन कैंपस भी बहुत सारी कंपनीज आती हैं इफ यू आर इन गुड कॉलेज। इवन ऑफ कैंपस भी आपकी देखते हैं कैपेबिलिटी क्या है, आपके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, तो आपने कितने सर्टिफिकेशन कोर्स किए हैं और कितने रियल टाइम प्रोजेक्ट किए हैं, प्रोजेक्ट्स करो, देन आपको इस चीज़ का ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सेल्स एंड मार्केटिंग भी है, लाइक हाई पेइंग नॉन टेक जॉब्स में मैं आपको बता रही हूँ कि पहला मैंने आपको बता दिया फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, सेकंड इज सेल्स एंड मार्केटिंग। टेक नॉन टेक दोनों में ही होती है वो चीज़ें, एंड आपका पैकेज भी प्रीटी गुड एवरेज ही होता है। एंड देन UI UX डिज़ाइंस, क्रिएटिव फील्ड है, नो कोडिंग। एंड UI UX डिज़ाइन सच बता रही हूँ बहुत ही अच्छी फील्ड है, आई बिलीव इन दैट, बिकॉज मेरी एक फ्रेंड है, बेसिकली शी वॉज इन IIIT, ठीक है, IIIT में, एंड वेरी गुड कॉल, शी वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट। उसने कोडिंग की, वो कर सकती थी, बट उसका इंटरेस्ट ही नहीं था उस साइड में, बट वो स्कूल टाइम से ही आर्ट एंड क्राफ्ट और थोड़ा सा डिज़ाइनिंग में अच्छी थी, तो इस वजह से उसने UI UX डिज़ाइंस परस्यू किए, एंड नाउ शी इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब इन अ वेरी गुड कंपनी। शी इज़ हैप्पीली डूइंग इट, एंड उसको बहुत ही अच्छा पैकेज भी मिला है। तो इससे मैं एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप जो भी फील्ड चूज़ करो, अगर आप हार्डवर्क करोगे देन यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड हैप्पीनेस ऑल्सो। क्योंकि जॉब स्टार्ट करने के बाद मैंने एक चीज़ सीखी, पहले दिन मेरा ऐसे हो गया था कि मेरा पैकेज कम हो, बट प्लीज़ इतना प्रेशर नहीं झेल सकती मैं। सो इसीलिए थैंकफुली टचवुड प्रेशर तो है वैसे, बट आई एम एंजॉइंग माई वर्क। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, आप अपने स्टार्टअप्स के बारे में सोचो। वैसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आजकल स्टार्टअप से बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, वो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी रेडी है, बट इफ़ यू हैव अ गुड प्लान, अ गुड स्ट्रैटेजी, और अगर आपके पास भी कोई अच्छी स्ट्रैटेजी है कुछ स्टार्टअप की, सो प्लीज़ मुझे भी बताना, हम लोग साथ में कुछ कर सकते हैं। तो कमेंट डाउन बिलो योर थॉट्स। एंड आई नो ये वीडियो उतनी डीप नहीं थी, बिकॉज मैं आपको हर फील्ड के बारे में तो डीप डिटेल नहीं बता सकती थी। सो मैंने आपको इस वीडियो में मेनली एक ब्रॉड व्यू दिया है कि आप अगर कोडिंग नहीं करते हो या आपको नहीं पसंद है कोडिंग करना, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो और आपको ये रियलाइज हो रहा है कि मैंने गलती कर दी कि मैं सॉफ्टवेयर फील्ड में आ गई या आ गया, देन डोंट बी डिसहार्टेंड। जॉब्स हैं, टचवुड इंडिया में ही सिर्फ सबसे ज़्यादा जॉब्स आपको मिलेंगी, अब्रॉड से ज़्यादा। मे बी अब्रॉड में आपको पैकेज अच्छा मिलेगा, बट इंडिया में आपको एटलीस्ट जॉब तो मिलेगी। सो इसीलिए आप जो भी कर रहे हो प्लीज़ मन से करना, स्ट्रेस
प्रेशर लेके मत करो। हाँ, थोड़ा सा वो होता है हमारे पास, हमें काम करने में मजा आना चाहिए। जो हम काम कर रहे हैं, जो भी हमने रोल चूज किया अपने लिए, वो हमें काम करने में पसंद आना चाहिए। बाकी काम तो बहुत होता है, उसका काम कंप्लीट करने का प्रेशर भी होता है टाइम पे, बट वो काम आपको आता है ना, तो आप थोड़ा टाइम लगेगा पर आप कर लोगे। पर अगर वो काम आपको आता ही नहीं तो आप फालतू में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोगे, प्रेशर लोगे, क्योंकि आपको वो आता ही नहीं होगा। तो वो अलग तरीके का प्रेशर होता है, और एक काम कंप्लीट टाइम पे हो जाए, ये वाला प्रेशर अलग रहता है। ये प्रेशर सबके पास होता है। So here I conclude this video, and do like, share and subscribe, and do tell me in comment section if you want me to discuss any new topic with you all. Okay, bye.